भोजन को आयुर्वेद में कहते हैं कि आहार औषध है। अगर आहार गलत है तो औषध भी काम ठीक से नहीं करता है। कुड़मार नाम के पत्ते उगते हैं जिसके पीले रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं। उसके भी अगर 3 पत्ते खाली पेट खाया जाए तो डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल दोनों में वो बहुत फ़ायदा करता है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा थायराइड रहता था, मेरी दवाई बंद हो गई। जो रुचिकर और पाचन के लिए मदद करे ये मसाले का काम है। सो व्हेन वी टेंड टू ईट विरुद्धाहार, वी आर गोइंग टू have some complications, some health issues. Virodahar means the food which are not matching to each other, contradictory. For example, fruits with milk. But everybody seems to be drinking mango shake, milkshake, even pineapple shakes. Better is to keep that in mind, which method you are using, how you are going to cook, what are the right combination, at what time you are going to eat it. That matters also a lot. Having food on wrong timing, like having lunch at 4 o'clock in the evening, having dinner at 11 in the night. We have in our studio today Kaushani Desai, international faculty with the Art of Living and a holistic cooking trainer. She is going to tell us today how to improve our lifestyle and eating habits to live a healthier and fuller life. Kaushani ji, thank you so much for coming to our studio today. Thank you for inviting me. So the first thing that I'd like to ask you is, what is the first thing in the morning that we should eat? Because it's the beginning of the day and everybody has this question. Fruits or lime water or tea or nothing? So what do you suggest? According to Ayurveda, there are 3 prakritis, Vata, Pitta and Kapha. And based on our prakriti and vikriti, we should have first thing in the day. It can be warm water, it can be lime and honey warm water, it can be herbal tea, something light for breakfast. Break your fast with light food, fruits or soaked dry fruits and nuts, or one can have sprouts mixed with vegetables, or can have dosa, kind of non-fermented dosa from millet or dal. There are various options. So could you help us with the prakriti and the food? For example, if like I'm a high pitta, what is it that I should eat first thing in the morning so that my acid levels are balanced? So you can start your day with sweet fruits. Avoid eating sour fruit on empty stomach. If you don't feel like eating fruits, then you can have either lightly steamed sprouts mixed with vegetables and some spices which helps you to digest that, like black pepper, black salt, lemon, and little bit of coconut or sesame seed. Or you can have some sunflower seed, watermelon seed or flax seed which is roasted and mixed with your salad, and have a good bowl, full bowl of that salad. Or you can make different dosas from moong dal or green moong, like pesarettu dosa, and apply some good chutney which helps you in digestion, like coriander, mint, little ginger in that chutney, and then you can stuff and make it like a roll with some cooked vegetable or paneer. Oh, good. That's not very difficult. Yeah. So what about the vata types? Now for Vata people, again sweet fruits are very good, little heavier like banana, avocado is good. They can also have this non-fermented dosas or poha, something light for breakfast, so that you feel hungry in your lunch time. Okay. But if there are people who are going to the gym early in the morning, like 6 o'clock they have to be there, is it okay for them to eat something before they go? Better to go for exercise, come back and eat. Okay, so exercise, empty stomach. Yes. Okay. And the kapha ones, what should they For eat? kapha ones, fruits are very, very good for digestion in the morning, and they should prefer eating fruits. Any sweet, sour. Avoid eating banana, chiku, custard apple and mango which are heavier, and have other papaya or pomegranate, apple, all sorts of fruits they can have. Okay, so according to your constitution or your prakriti, fruits are good, but you have to follow this Yes. particular thing. In your introduction, I said that you are a holistic cooking trainer. What is holistic cooking?
Holistic cooking means in ancient time how we used to cook, how we used to eat, and we had a very balanced lifestyle. We used to do more physical activity and eat in moderation. Now in sedentary lifestyle, that physical activity is missing, but our food amount has increased. Just to have a balance between the amount of food we eat and the kind of physical activity we do. If we bring this balance, then it is very, very good. Going for walk at least for half an hour every day is very good for digestion. It's very good for blood circulation. And if you walk every day, best exercise one can do, that is walking. But what about the cooking part? I mean, how can, in today's lifestyle, how can we make our food holistic? The same food I want to eat a rajma chawal today. How can I make it holistic? Little changes we can bring in our cooking style, and a little bit of habit of soaking, washing what we are using, because when we buy from market full of pesticides, and there are a lot of colors or some injections also people are using nowadays. So when you bring any fruits or vegetable from the market at your home, soak it into water before you use it. Any water? Normal water. Okay. Yeah. And then you peel it, use it. And cooking time should be very, very particular. You should not be overcooking what you are eating, because overcooking reduces nutritive value. So it should be not cooked too much. It should be not undercooked. Proper cooked food is good for digestion. And combinations what we are using. Like? For example, as per Ayurveda, there is something called Virudahar. Yes. So when we tend to eat Virudahar, we are going to have some complications, some health issues. Could you explain Virodahar? Virodahar means the food which are not matching to each other. Okay. Yeah, contradictory. Like? For example, fruits with milk. But everybody seems to be drinking mango shake, milkshake, even pineapple shakes. So everything is available in market nowadays. Good things, bad things. We need to be wise in choosing what we are eating. If you go to market, food which is highly refined, food which is very much processed, everything is available, like McDonald's kind of food which is so processed that it doesn't get spoiled only. Everything is available in market. What is available we are allowed to eat, that is not the rule, right? Yes. So if we choose wisely and select what we want to eat, what we need to eat, then it's good. Avoid eating. There are many combinations like that. So in this holistic cooking training, we teach the impact of the wrong combination, what are all comes in wrong combination. Could you give us one or two more examples of Virodahar? For example, curd and milk together. Sometimes we keep both the things in our meal. Unknowingly we are eating Virudahar because we don't have that information. For example, milk with honey gives white patches on the skin. But nowadays in gym they give this as a tip, that mix milk and honey and have it. And within 3-4 months you can see patches on your face, white color patches on your body. That is because of this wrong combination. Like that salt with milk is also a wrong combination. So just taking care of all these things, and then it's easy. Also in this, cooking method is very important in the course. Holistic way of eating means cooking is also very important. How you cook. Okay. Whether you roast it, you boil it, you fry it, you heat it up in microwave oven. Okay. How you are cooking the food. Okay. You steam it. There is a lot of impact of cooking methods on the food. So the more temperature is used to cook the food, it reduces more nutritive value. So more than 140, more than 120 degree temperature reduces lot of nutritive value. So cooking something for hours and hours on gas, it can reduce the nutritive value. So better is to keep that in mind, which method you are using,
how you are going to cook, what are the right combination, at what time you are going to eat it. That matters also a lot. Having food on wrong timing, like having lunch at 4 o'clock in the evening, having dinner at 11 in the night. Now this is not the right time to have food. So following a healthy lifestyle, a routine is very, very important. You know, so many years ago, our grandparents, I remember reading and watching some old movies in which they would, the men of the family would eat at 11, the children would eat, go to school, they would go for their office, come back at 5 and have the next meal. Now we call it intermittent fasting. Yes. Yeah? Is this a good way to eat? Eating at 11 in the morning and at 5 at night and nothing in the middle? Intermittent fasting is good because in following that way, you are giving time to your body to digest what you had. 11 if you eat something, at least you need to give 3 to 4 hour gap before you have your next meal. Nowadays we don't give gap. Breakfast, after that lunchtime, after lunchtime we say high tea, after high tea dinner time, in between we are open to munch something. Yes. Yeah, so always having gap, good gap, at least 4 hours, 5 hours in between your meals. And if you are eating something fried, then it will take little longer time. So then your next meal should be lighter. Like that we need to have some adjustment, and we are very good in doing adjustment in life, right? So in food also little bit we need to have that okay, if I had something heavy, next meal I'll have light, or I'll fast. Somehow I'll help my body to go through with this process of digesting heavy what I had. So you can eat all sort of food, but in a wise way. Combination. So if you are going to eat something fried, have salad before that. Do not mix more than 1 grain with that meal. Yes. Like that, if you keep little bit of attention to what you are eating, it's easy to manage. You were talking about soaking, remember you said? So rajma, chana, these are heavier lentils. So how long do we need to soak this before it can be cooked properly? So in ancient time, like our grandmother, grandfather, in that era, they used to soak all the dry things like rice, millets, pulses, beans, and then they used to cook it. In that way, it is easy to cook and easy to digest. When we don't soak dal, rice, millets and directly cook it, it is heavy for digestion and it takes time to cook also. And then we have to use pressure cooker to cook it quick. Now pressure cooker has more temperature. We might lose most of the nutrient. So there is lot of mismatch in the process of using the ingredient and cooking the ingredient and eating the ingredient. So there should be a balance between everything. So you mean to say if I soak rajma overnight, like 7 hours or 8 hours, I don't need to pressure cooker it to cook it? No. Then it cooks will without take. it? Yeah, you can cook it without pressure cooking. Interesting. Yeah. Because and it's more flavorful. The flavor is intact in that. Okay. अगर कोई डायबिटिक हो तो उसके आहार में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि वो डायबिटीज को या तो रिवर्स कर ले या मैनेज कर पाए? फॉर डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो थोड़ा बैलेंस खाना खाए. जैसे कि मल्टीग्रेन खाएं. एक से ज़्यादा अनाज मिलाकर खाने से उनको फ़ायदा होता है. 4 या 5 तरह के धान मिलाकर एक खिचड़ी की तरह बना के खाने से उनको शुगर लेवल में भी काफ़ी फ़ायदा दिखता है कि वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है. और कई सारे ऐसे मिथ्स हैं कि मीठे सब्जी नहीं खा सकते, जैसे शक्करकंदी है. डायबिटीज़ में शक्करकंदी खा सकते हैं. चावल में भी लाल चावल के जिसमें फाइबर ज़्यादा है, जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा हैं, लाल चावल को चुने सफ़ेद चावल के सामने. और जितना हो पाए उतना बारीक आटों को इस्तेमाल करने की जगह पर दरदरा आटा इस्तेमाल करें.
कुछ भी करके फाइबर उनके डाइट में बढ़ना चाहिए। अक्सर सुनते हैं ना, सुबह उठते साथ ही मेथी और नीम खाने की हिदायत दी जाती है, तो ऐसा सही है क्या? मेथी के दाने रात को भिगाकर सुबह पानी समेत मेथी के दाने हम निगल सकते हैं, बहुत अच्छा है डायबिटीज में। नीम की पत्तियां चबाना भी बहुत फायदेमंद है। और गुड़मार नाम के पत्ते उगते हैं जिसके पीले रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं, उसके भी अगर 3 पत्ते खाली पेट खाया जाए तो डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों में वो बहुत फायदा करता है। क्या नाम बताया आपने? गुड़मार। गुड़मार। वो खाने के पश्चात आप कुछ भी मीठा खाएंगे तो आपको लगेगा मुंह में रेत है, आप मीठा स्वाद 1 घंटे के लिए महसूस ही नहीं कर सकते। ये एक देसी प्लांट है। हाँ। और ये बहुत प्रचलित भी है, काफी लोगों को पता भी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सिर्फ 3 पत्ते आप भूखे पेट खाएंगे तो इसका भी बहुत फायदा है। फिर हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या आप सजेशन दे सकते हैं? नमक बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम प्रोसेस्ड नमक यूज़ करते हैं, प्रोसेस्ड नमक की जगह पर हम सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन डायबिटीज़ के लिए भी सेंधा नमक या किसी भी बीमारी के लिए सेंधा नमक ज़्यादा फायदेमंद है। और भारी चीज़ें जैसे तला हुआ खाना हो गया या फिर मिठाई हो गई, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। तला हुआ, मीठा, फर्मेंटेड बेकरी प्रोडक्ट, मैदा, रिफाइंड खाना, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, वाइट शुगर, ये सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ हो। कोई एक दिन चीट डे हो तो उस दिन क्या खा सकते हैं हार्ट पेशेंट्स? चीट डे में भी अच्छा बना के खा सकते हैं, जैसे खजूर का इस्तेमाल करके या फिर गुड़ का इस्तेमाल करके आप मीठा बना सकते हैं। मीठा भी हो तो सब्जी से बनाइए, जैसे कद्दू का हलवा, लौकी का हलवा, गाजर का हलवा, कि जिससे उसमें फाइबर भी है। और फिर आप चीनी तो चीट डे को भी ना इस्तेमाल करें, वही अच्छा है। तो गुड़ का यूज़ करें, गुड़ का पाउडर यूज़ करें। स्टेविया जो लीव्स आती हैं आजकल बहुत चर्चा में है, एक्चुअली कोई फर्क पड़ता है उनसे या? स्टीविया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया और एक तो कोकोनट शुगर बहुत आजकल प्रचलित है। इस दोनों का स्वाद आपको रुचिकर आपको लगे, उसके लिए थोड़ा आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी ये दोनों चीज़ भी सेहत के लिए फायदेमंद है। आयुर्वेद में बैलेंस्ड डाइट किसको कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट यानी सब कुछ आप मॉडरेशन में खा रहे हैं। दाल, अनाज, दिन में एक बार अनाज खा लिया तो एक बार आप मिलेट खा सकते हैं। कोई भी चीज अति नहीं करना है, क्योंकि अति की कोई गति नहीं होती है। तो जैसे नट्स हो गए हैं, ड्राई फ्रूट हो गए, फल, सब्जी, जितनी भी चीज भगवान ने बनाई है वो सब कुछ इन मॉडरेशन अगर हम अपनी डाइट में इनकलकेट करते हैं यानी शामिल करते हैं तो बैलेंस डाइट कहते हैं। और 6 रस, षड रस जो है हमारा, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, तूरा और नमक, 6 के 6 रस होना भी बहुत जरूरी है। उसे भी संतुलित आहार के तौर पे देखा जाता है। ज्यादातर हम जो हमें स्वाद में अच्छा लगता है उसे ही खाने में चुनते हैं। ये हमारा एक अवरोध रूप चीज है। तो हो सके तो हम थोड़ा ओपननेस रखें, 6 के 6 स्वाद हमारे भोजन में सम्मिलित हो, उस पे थोड़ा ध्यान दे, तो बैलेंस डाइट हम ले सकते हैं इस तरह से। पिकल, अचार एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इंडियन फूड का, तो ये सब लोग पेशेंट्स जो हैं डायबिटिक्स, ये सब खा सकते हैं अचार? अचार, मीठा, तला, क्योंकि अचार में एक तो तेल की मात्रा है, दूसरा नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो हो सके तो फ्रेश अचार बनाएं। जैसे आम है, कच्चा आपने काटा, तुरंत उसमें थोड़ा हल्का सा सेंधा नमक, हल्की सी अपने लाल मिर्च डाल के उसको खा लिया। उसको बासी ना करें हम, क्योंकि फिर वो नमक की मात्रा उसमें चढ़ती जाएगी। उसी तरह आप कच्ची हल्दी है या फिर जो आंबा हल्दी बोलते हैं, मैंगो जिंजर, उसको भी फ्रेश काट के नींबू नमक डाल के पिकल की तरह खा ले। अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस करके हल्का सा नींबू और नमक डाल के आप खा सकते हैं पिकल की जगह पे। ये सब चीजें डाइजेशन के लिए भी अच्छी है, शरीर को भी फायदा देती है और आपको पिकल खाने का भी संतुष्टि मिल जाता है। आयुर्वेद में आइडियल मसाले क्या होते हैं?
आयुर्वेद में आइडियल मसाले, सारे ही मसाले अच्छे हैं, बस आप कैसे उसका उपयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कद्दू वात को बढ़ाता है, अगर आपका वात बढ़ा हुआ है और आपको कद्दू या लौकी खाना है और उसके अंदर बैलेंस लाना है, तो आप घी में मेथी और जीरे का तड़का उस लौकी और कद्दू के सब्जी में कर सकते हैं। वात, पित्त, कफ सबको बैलेंस करने के मसाले हैं। जैसे पित्त को बैलेंस करने के लिए शीतकर मसाले जैसे सौंफ, जीरा, सूखा धनिया, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, मुलेठी, रोज वाटर, ये सब ठंडी तासीर के हर्ब्स और मसाले हैं। लेमन ग्रास, इनका उपयोग आप भोजन में कर सकते हैं। इलायची। इसी तरह कफ के लिए गरम जो मसाले हैं, जैसे गरम मसाले सारे आ गए, मिर्ची, काली मिर्च, अदरक, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वात के लिए भी मेथी, हींग, अजवाइन, जीरा, ये सब फायदा करता है। हल्दी सभी में डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं, वात, पित्त, कफ तीनों के लिए। और जो रुचिकर और पाचन के लिए मदद करे, ये मसाले का काम है। किसी भी भोजन को स्वादिष्ट बनाना और भोजन को संतुलित करना, ये मसाले का काम है। इसीलिए हम प्राकृतिक रूप से जब आलू बनता है तो अजवाइन, अदरक डलता है या हींग। जो वायु कर है उसमें हम वायु को बैलेंस करने वाले मसाले ही ज्यादातर यूज करते हैं। किसी भी आप साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सब मसाले हम अपने हिसाब से यूज कर ही रहे हैं, पर हमें ये शायद ज्ञात नहीं है कि हम इस वजह से कर रहे हैं। वजह क्या है कि हम कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन है। हर एक सब्जी के अंदर मसाले डालने का एक कॉम्बिनेशन हर घर में फॉलो होता है। कहाँ जीरा, कहाँ अजवाइन डालना है, कहाँ तिल डालना है, कहाँ सौंफ डालना है, तो ये तो हम सब फॉलो करते ही आ रहे हैं। तो सारे के सारे मसाले औषध का काम करते हैं खाने को बैलेंस करने के लिए। जरूरी है, आजकल बर्तन जैसे नॉनस्टिक बहुत प्रचलित हो चुका है क्योंकि चिपकता नहीं, कम तेल में बनता है, बट नॉनस्टिक कार्सिनोजेनिक है। नॉनस्टिक, एल्यूमिनियम कैंसर को बढ़ाने के लिए ये कारण माने जाते हैं। तो बेहतर है हम देसी जो भी हमारे पहले हम यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर पीतल के बर्तन हो गए, लोहे के हो गए, लकड़ी के स्पैचुलास यूज करते थे पहले, लकड़ी की चम्मच से खाना हिलाते थे, आजकल स्टील के आ गए हैं। तो हम उन चीजों को भी वापस अगर अपने रसोई में लाते हैं तो वो भी बहुत फायदेमंद है। मिट्टी के बर्तन में दही को जमाना, तो दही जल्दी खट्टा नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। जब दही जमाते हैं तो अंदर आप तुलसी का पत्ता या तो बेल का पत्ता डाले जमाते समय, तो वो खट्टा नहीं होता। उसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि तुलसी और बेलवा पत्र दोनों क्या है, एंटी बैक्टीरियल है। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपनी रोजमर्रा के जीवन में अगर हम यूज करते हैं तो बहुत फायदा करती है। कितनी बार है ना, लोग आजकल जहाँ पैदा होते हैं वहीं नहीं रहते हैं, वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ का वायु, जहाँ का वातावरण, पानी सब बहुत अलग होता है, पर स्वाद तो वही है, जुबान, जीभ तो वही है। तो ऐसे समय में ऐसी जगहों पर हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने खाने को? जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ का पानी, आप कहीं से पानी तो लेकर नहीं जाएंगे, तो वहाँ जो उग रहा है वही खाने वाले, राइट? अब आपकी जो आदत है, मान लो आप नॉर्थ इंडियन है और आप साउथ इंडिया में आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि नॉर्थ इंडिया में जैसे पनीर है, राजमा है, चना है, आलू के पराठे ज्यादा पसंद किया जाता है। जबकि आप जब साउथ इंडिया में आओगे, यहाँ हल्का खाना है, यहाँ चावल का ज्यादा यूज है, रागी का ज्यादा यूज है, मिलेट्स का यूज है, यहाँ इतना ज्यादा पनीर वगैरह का कल्चर नहीं है। तो थोड़ा सा हमें मिडवे, मध्यस्थ जो रास्ता है वो अपनाने की जरूरत है। वंस अ वीक आप खा लो पनीर, वंस और ट्वाइस अ वीक आप खा लो, बाकी समय आप जो लोकल सब्जियां मिल रही है उसे अपने डाइट में इस्तेमाल करें। हल्की दालों को इस्तेमाल करें, मूंग है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, और उसको अलग अलग मसालों के साथ आप बना सकते हैं। कुकिंग के लिए ऑयल्स कौन से बेस्ट होते हैं?
कोल्ड प्रेस ऑयल बेस्ट है। जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोल्ड प्रेस यानी कच्ची घानी का तेल हो। वो प्रोसेस्ड ऑयल कोई भी तरह का आप लेंगे तो उसमें कोई भी फायदेमंद उसमें पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में ही उसमें से सारे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप कोल्ड प्रेस यूज करें। अगर आप गर्मी की जगह पे हैं तो ठंडे जैसे सूरजमुखी का हो गया, गाय का घी हो गया, A2 काऊ घी बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ठंडी जगह पे हैं तो ऑलिव ऑयल हो गया, या फिर राई का तेल मस्टर्ड ऑयल हो गया, वहां भी आप घी का यूज कर सकते हैं। तिल का तेल यूज कर सकते हैं। इंडिया में ऑर्डिनरी ऑलिव ऑयल हम लोग खाते नहीं थे, पर इज इट ओके उसमें मतलब खाना बना लेना या उसको कच्चा ही यूज करें सैलेड्स पर? एक्चुअली ऑलिव ऑयल सैलेड्स और खाने में ऊपर से ही इस्तेमाल होता है जहां से ये आया है, क्योंकि ऑलिव ऑयल को अगर पकाते हैं तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाता है। इसीलिए जो प्योर ऑलिव ऑयल है वो सिर्फ कच्चे खाने में ही, जैसे आपने कोई सब्जी बनाया, आपने थोड़ा सा उसमें ये तेल मिक्स कर लिया, इस तरह से ऑलिव ऑयल का यूज लोग करते हैं या ऑलिव्स खाते हैं। यहाँ पर ऑलिव ऑयल अगर मिक्स है, प्योर नहीं है, तो उसमें जो तेल की मिलावट की जाती है उसकी वजह से उसे कुकिंग के लिए हम मानते हैं कि आप यूज कर सकते हैं, पर ऐसी चीजों को यूज करना अवॉइड करना चाहिए, दो तरह के ऑयल को मिक्स करके। त्योहार की सीजन में मिठाइयों का तो बोलबाला रहता है, सबको खाना होता है और सबके घरों में, पहले तो घरों में ही बनता था, आजकल तो बाजार से लेके आते हैं। पर अगर घर पे बनाना हो हमें तो हम चीनी की जगह कैसे उसको बैलेंस करके त्योहार भी मना लें और मीठा भी खा लें? तो घर पे बना हुआ तो चीज सबसे अच्छा है, क्योंकि आप बना रहे हैं तो आप चुनेंगे भी अच्छी चीजों को। एक तो आप गुड़ का यूज कर सकते हैं, गुड़ पाउडर यूज कर सकते हैं, मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर नालेन गुड़ यानी जो खजूर का गुड़ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताल मिश्री को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर हमने बात की वैसे स्टीविया, कोकोनट शुगर, बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस मार्केट में है। शहद हम ऐसी मिठाई में यूज कर सकते हैं जो पकाने के लिए हम गैस पे नहीं रखने वाले हैं, तो ऐसी चीजों में शहद भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई मिठाई अगर आप बना रहे हैं कि जो रॉ है, जो अनकुक्ड है, तो ऐसी चीजों में शहद को भी यूज कर सकते हैं। सबको पता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फिर भी आप देखिए, आप सब पिज्जा हाउसेस फुल होते हैं। सो आयुर्वेदा क्या कर सकता है इसके लिए? आप कोई भी जंक फूड को थोड़ा एनालिसिस करेंगे, जैसे पास्ता, गुजरात में दाल में ढोकली डालकर दाल ढोकली बनती है, वो इंडियन पास्ता हो गया। वो जाकर दूसरे सॉसेस में मिक्स होकर वो अलग अलग पास्ता के नाम से लोग खाते हैं। जैसे लजानिया है, वो भी एक रोटी का टुकड़ा है। हमें सिर्फ ये करना है कि मैदे से जो जो चीजें बनती है उसको या तो चावल के आटे से बना सकते हैं या किसी भी गेहूं के आटे से बना सकते हैं, कोई भी और मिलेट के आटे से बना हुआ। आजकल तो नूडल, पास्ता सब कुछ ही हेल्दी मिल रहा है मार्केट में, तो ऐसे ऑप्शंस को चुन के हम बना सकते हैं। अपने आप से हम सब कुछ खा सकते हैं। जैसे पिज्जा हो गया, पिज्जा क्या है, रोटी और सब्जी उसके ऊपर थोड़ा चीज हो गया, तो वो तो हमें बनाना बहुत अच्छे से आता है। तो आप घर पे ही रोटी अलग अलग आटों से बनाकर उसके ऊपर आप तरह तरह के सॉस, जैसे टमाटर का सॉस है या फिर हम बेसिल का कोई सॉस बना के लगा देते हैं, कोई भी एक अच्छा सॉस, चटनी जिसे हम कहते हैं। टमाटर के सॉस को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए या तो थोड़ा सा कद्दू या तो थोड़ी सी शकरकंदी टमाटर के साथ मिला लेंगे। चीनी डालने की जरूरत नहीं है, वो खट्टा मीठा अपने आप में हो जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा। आपको बार बार टमाटर का पानी सुखाने की भी जरूरत नहीं है उसको गैस पे सॉस बनाकर। तो आसान तरीके, थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे तो हम कोई भी चीज घर में बना सकते हैं, अब बाहर खाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ब्रेड, अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो सिड्डू वहां पे बहुत प्रचलित है। सिड्डू को जब आप खाते हैं तो आपको लगता है ब्रेड खा रहे हैं, वेरी सिमिलर टू ब्रेड। तो इस तरह से वो स्टीम्ड है, ज्यादा हेल्दी है। मतलब हमें चीजें अपने हर एक प्रांत में जो हम अभी जंक फूड के नाम से देखते हैं, कुछ ना कुछ उसके सिमिलर हम बना ही रहे थे आज तक। तो जैसे मीठी रोटी हो गई, कड़क, जैसे गुजरात में भाकरी बनता है गुड़ वाला, वो बिस्किट के जैसा है।
तो हमें सब आता है पर हम उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. अगर कनेक्ट करेंगे तो हमें कोई भी जंक फूड को अपने हिसाब से हेल्दी फूड कन्वर्ट करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी. आजकल तो सब्जियों से नूडल्स बनते हैं जिसे कहते हैं जूडल्स. जुकीनी से, गाजर से, कद्दू से, लौकी से आप नूडल बना के उसको सॉस में मिक्स करके हेल्दी वर्जन भी खा सकते हैं. या फिर मिलेट के नूडल्स का यूज कर सकते हैं. जैसे बर्गर हो गया. बर्गर का सबसे देसी उपाय है इडली. इडली को बीच से काट के, अब सारा बर्गर का जो भी सामान है वो बीच में रख के आप बर्गर बना के खा सकते हैं. आप तरीके उत्तपम थोड़ा मोटा भी है, पिज्जा का एक बेस की तरह यूज कर सकते हैं. उसमें वो फर्मेंटेड फ्लेवर भी आ गया. तो हम चाहे तो कुछ भी संभव है, चाह होना जरूरी है. Imagine idli. The next thing that people have asked me to ask you is mothers have a tough time when they send their children to school. What should they put in their tiffins which will keep the child full and give him nutrition, and the child won't throw the food away? See, for children, the food should be colorful. First thing, that they see and they feel wow. Like beetroot or spinach or some natural color we can add and make idlis or appe kind of thing. You know, mini appes, mini idli. Something which is dry and they can, like a bite size. Easy for them to eat. If we give them sabji roti, forget about they are in a mood in play. So they are not going to eat that roti, sabji. So something handy, easy for them to eat. And every time you can make it with a twist. With color, with flavor, shapes. So if you make big idli, cut it with the shapes. Animal shape, leaf, different cookie cutters are there. So make the food with different shapes, colors and flavors. Definitely they are going to eat it, and other friends will also love what they are bringing. They'll also enjoy with them. Oh, good. The same thing, what would you suggest for teenagers? They want to eat out, they want to eat junk. How can we prevent them from doing this? Replacement of junk one can make at home. Avoid using maida, replace it with wheat, ragi, rice, barley, and make same things like making wraps but from chapati instead of making it from maida. And healthier version we can make in a fancy way so that we feel like, oh, I am having junk, but it is actually not junk and it's healthy. Yes. So like that we can have options. Okay. आप इंटरनेशनल फैकल्टी रह चुकी हैं, कई देशों में गई हैं टू टीच कुकिंग. कुछ इंटरेस्टिंग यादें हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज. सबसे पहला कोर्स पाकिस्तान में हुआ था. तो वहाँ जिनके वहाँ घर में रुकी हुई थी, उनको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू था. तो उनके घर में 1 महीना रहने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि मुझे बस अब इसी तरह का खाना खाना है. उन्होंने कुकिंग कोर्स किया और उनको बहुत अच्छा लगा. तो उन्होंने अपने जो कुक थे उसको आदेश दे दिया कि दीदी के साथ रह के सब कुछ सीख लो आप, मेरे लिए इस तरह का ही खाना बनेगा. 1 महीने के अंत में जब मेरा वहाँ ख़त्म होने वाला था काम, तो एक दिन उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ. रात को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ. उन्हें हॉस्पिटल ले गए और मुझे पता चला कि उनकी हालत बहुत खस्ता नाजुक है. डॉक्टर ने कहा आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो, आप मैदा नहीं खा रहे हो, आपने चीनी छोड़ दी है, जीना मुश्किल है. कुछ जो भी उनको तब समझ में आया वो उनको बताया. ये थोड़े डर गए. मुझे पता चला, मुझे भी थोड़ा चिंता हो गया कि कैसे इनका हालत ख़राब हो गया एकदम. 3 दिन बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको फाइब्रॉइड्स थे यूट्रस में, वो साफ हो गया. और डॉक्टर ने कहा कि अब आपका यूट्रस नॉर्मल है, आपको अभी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सेहत पहले से बहुत बेहतर है. और उनको जब वो हॉस्पिटल से घर आए तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर ज़्यादा स्पष्टता है, मन के अंदर क्लैरिटी बढ़ चुका है. याददाश्त उनकी बहुत बेहतरीन हो गई पहले से. जैसे पहले अगर उनको कुछ काम हो तो लिख के रखना पड़ता था, याद नहीं रहता था.
अब वो अकेले किसी और शहर में गए और वहाँ उनको किसी की मदद के बगैर उन्होंने अपना सारा काम किया, तो बहुत खुश थे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मेरी मेमोरी इम्प्रूव हो गई है। उनको सूजन हो जाती थी आंखों के नीचे, वो सारा प्रॉब्लम चला गया और बहुत खुश और लाइट फील कर रहे थे वो मेरे जीवन का पहला अनुभव था कि भोजन से क्या फायदा हो सकता है। उसके बाद कई लोगों के साथ संपर्क में आकर देखा कि बहुत सारे लोगों को इस तरह से इस ज्ञान को जीकर अलग अलग तरीके से फायदे हुए हैं, शरीर के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे। उनको अपनी साधना में बहुत ज्यादा बदलाव और बहुत इम्प्रूवमेंट, गहराई महसूस हो रही है। और सभी एज के लोग इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 7 साल का, 11 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया है और सब लोग इस ज्ञान से और इस भोजन से एंजॉय करते हैं, तृप्ति अनुभव करते हैं और उन्हें ये फॉलो करने से फायदा भी होता है। ऐसे कई लोग अब हमारे कुकिंग कोर्स के टीचर बन चुके हैं जिन्होंने लगभग 30 किलो वजन घटाया 3 महीने में, काफी रोगों से मुक्ति पाई। तो वो इस गुरुजी का ये जो ज्ञान है, जो इनके जीवन में इतना बदलाव आया है, कृतज्ञ भाव से अब वो हमारे कुकिंग कोर्स के टीचर हैं और इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में एक बार एक दीदी ने कोर्स किया था, 100+ था उनका वेट, उनके हस्बैंड का भी उतना वेट था। कोर्स में आए, उन्होंने कहा मुझे वजन कम करना है, क्या करें? आप कोर्स में जो जो सीखा है उसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए, देखिए। फिर 4 महीने बाद उनका एक ईमेल आया आफ्टर और बिफोर के फोटो के साथ, और उन्होंने लिखा था कि मुझे अब 10 साल पहले के मेरे कपड़े भी फिटिंग आना हो गया है, फिट आने हो गए। आप घर पे आइए जब भी आप दिल्ली आएंगे मिलने के लिए। अब उनके फोटो में मैंने उन्हें और उनके हस्बैंड दोनों को देखा था। जब मैं घर पे गई, दरवाजा खोला भैया ने, तो मुझे लगा उनके छोटे देवर या कोई होंगे, वो उनके हस्बैंड थे। मैं पहचान नहीं पाई, उनका भी इतना वेट लॉस हो गया था और उनको डायबिटीज वगैरह जो भी दिक्कतें थी वो सब एकदम फायदा हो गया सब चीज़ों में। तो बहुत खुश थे दोनों। और मेरे लिए आश्चर्य की ये बात थी कि दिल्ली में जहाँ पे खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे टिक्की हो गई, चाट हो गए, पनीर हो गया, मान लो पराठे, मक्खन, घी वाले तले हुए चीजें, इतनी होने के बावजूद भी दोनों ने, जबकि दोनों वर्किंग है, उनका प्रिंटिंग प्रेस है दिल्ली में, उसके बावजूद उन्होंने कुकिंग प्रोसेस, कॉम्बिनेशन, सब चीज़ों को 100% फॉलो किया और उनको 3 से 4 महीने में इतना फायदा हुआ। ये देखकर सीखने मिलता है और ज्यादा कि इस ज्ञान से कहाँ कहाँ किस किस तरह से लोगों को फायदा हो सकता है। कई बार लोगों को थायराइड में भी बहुत फायदा हुआ है। जब वो कभी ऐसे ही मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हम पहले मुझे बहुत ज्यादा थायराइड रहता था, मेरी दवाई बंद हो गई। तो भोजन को आयुर्वेद में कहते हैं कि आहार औषध है। अगर आहार गलत है तो औषध भी काम ठीक से नहीं करता है। तो औषध और ट्रीटमेंट के साथ साथ पथ्य, यानी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आहार को अगर फॉलो करते हैं तो दुगना फायदा होता है आयुर्वेदिक दवाई या फिर ट्रीटमेंट का। हम लोग ना जब योगा स्कूल में आई वाज डूइंग द बुक फॉर देम, तो उसमें ना हम लोग पढ़ रहे थे कि इन वन ऑफ द पुराणास फूड का ना डाइसेक्शन बताया था कि जैसे ऑयल्स होते हैं, उसका सटल हिस्सा जो होता है उससे स्पीच बनती है आपकी, ऐसा कुछ है। हर एक बॉडी पार्ट के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे कि मान लो आप ब्रेन लुक लाइक वॉलनट, अखरोट, आलमंड लुक लाइक आइस, कैश्यू लुक लाइक किडनी, कद्दू लुक लाइक स्टमक। तो कुदरत और हम में कोई फर्क नहीं है। अगर आप बहुत बारीकाई से देखो तो हम सब एक ही हैं, एक स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर। इसीलिए बैलेंस, तेल, घी कुछ भी बुरा नहीं है इस दुनिया में, सब चीजें अच्छी है। कितनी मात्रा में खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं,
उसे तल के खा रहे हैं क्या करके, या उसको बासी करके खा रहे हैं, सब उस पे निर्भर करता है। अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं, सही मात्रा में खाते हैं, सही समय पे खाते हैं, तो फायदा ही होने वाला है। प्रॉब्लम होता है जब हम इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए सब कुछ ऊपर नीचे करते हैं। खाने का समय ठीक नहीं है, 2-3 दिन पहले का बासी खा रहे हैं, या फिर ज्यादा जंक प्रोसेस्ड चीजें ही पसंद कर रहे हैं, या फिर समय नहीं है करके हम ऐसी चीजों को चुनते हैं। आजकल आप देखो हर एक शहर में होम फूड का एक ट्रेंड आ गया है कि आपको माँ के हाथ का खाना टिफिन में मिलेगा। इतना एडवांस हो चुका है जमाना कि हमें जंक फूड, फ्रोजन फूड पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। और रास्ता चाहिए तो मिलता है। कहते हैं कि ढूंढने से भगवान मिलता है, ढूंढना पड़ता है। हम आसान चीजें ढूंढते रहते हैं तो फिर सब कुछ तो आसानी से जीवन में मिलना मुश्किल है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और जिस कोर्स की आप बात कर रही हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो कुछ बताएंगे प्लीज। ये हमारा 4 दिन का कोर्स है, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। 3 घंटे 4 दिन, एवरीडे 3 घंटे। 2 दिन इसमें हम थियरी और 2 दिन प्रैक्टिकल सीखते हैं। थियरी में हम मसाले के बारे में, विरुद्ध आहार, फिर अल्कलाइन वाटर, कितने तरह के अल्कलाइन वाटर आप खुद बना सकते हैं, कुकिंग मेथड, फिर कितनी देर क्या क्या चीजें भिगा कर खाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे सब लोग व्यस्त हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्री है। इस व्यस्तता के साथ अगर आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन को मिलाना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे आपको अगर मान लो कुछ भिगा कर खाना है तो आप किस तरह से भिगाएंगे, और ये सारे टिप्स आपको कोर्स में सीखने मिलते हैं। प्रैक्टिकल में जैसे हमने अभी बात की जंक फूड और हेल्दी फूड की, तो दोनों है। घर में खाने वाली चीजें जैसे सब्जी रोटी जो हम खाते हैं, वो दाल चावल, सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। और जैसे हम पास्ता हो गया, केक हो गया, उसे कैसे हम हेल्दी इंग्रेडिएंट से हेल्दी तरीके से बना सकते हैं, जो बच्चों को भी हम लुभा सकते हैं, खुश कर सकते हैं। तो सारी चीजें प्रैक्टिकल में इंक्लूडेड हैं। हम तरह तरह के जूसेस हैं वेजिटेबल से, कैसे आप हेल्दी जूसेस खुद बनाकर पी सकते हैं जो टेस्टी भी है। हेल्दी खाना जो स्वाद में भी अच्छा है और तंदुरुस्ती भी देता है। इस तरह का भोजन, जब तक आपको भोजन संतुष्टि और आनंद नहीं देता, वो शरीर को फायदा नहीं करता। इसीलिए हेल्थ के नाम पे टेस्टी नहीं होना, ये सब एक विचार है। हेल्दी खाना जरूर टेस्टी हो सकता है। ये काम हमारा इस कोर्स में सिखाना है। ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्या? ये ऑफलाइन फॉर्मेट है और हर एक शहर में, भारत के बाहर हमारे टीचर्स हैं, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। Viewers can check the information box below for more details about holistic cooking program with Kaushani Desai. Kaushani दी, thank you so much for coming. आप आए, आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई। I hope हम आपको दोबारा भी लेके आ सकते हैं for more details like this. Thank you so much for coming. Welcome.